On behalf of the Grow MSME Club, I, CS Sunil Agarwal, Practicing Chartered Accountant and co-founder of the Grow MSME, extended a warm welcome to all participants joining us for our mega webinar, From Idea to Execution, with turning dreams into the startups. Organized in collaboration with the Atal Incubation Center, JNU, and under the aegis of Atal Innovation Mission, Niti Aayog. Today's session is all about transforming ideas into the successful enterprise, understanding how innovation, funding, and mentorship can turn dreams into sustainable startups. Participants, please feel free to post your question in the chat box. We will take a few live queries for from our speakers. Now it's time to acknowledgement of the guest, our guest of honors. We are privileged to have with our distinguished guest of honor, Mr. Dr. J. Jagannathan, Associate Professor and Coordinator, Atal Incubation Center, JNU, a passionate mentor guiding young innovators through their startup journey. And another guest of honor is Mr. Ashish Pandey, an innovative lead in Atal Innovation Mission, Niti Aayog, a dynamic leader driving flagship into incubation and startup initiatives. We have also would like to acknowledge the visionary behind Grow MSMEs, Mr. Ashok Jha, founder, a seasoned business strategist, ex-banker, and funding expert. Another speaker is H.K. Gupta ji, co-founder of the Grow MSME Club, a senior chartered accountant and mentor known for his deep insights into the business compliance and financing. Today's webinar focuses on the practical aspects of the entrepreneurship. What are turning an idea into a validated business model, accessing funding and incubation support systems, ensuring effective execution while staying compliant. Now, not taking so much of time, it's time to listen our guest of honor. First of all, Dr. J. Jagannathan, an associate professor and coordinator at Atal Incubation Center, Jawaharlal Nehru University, where he leads in an initiative that bridges academic innovation with entrepreneurial execution. With extensive experience in mentoring early-stage startups, Dr. Jagannathan plays a pivotal role in fostering innovation, research-based entrepreneurship, and policy-driven incubation support. His work focuses on the empowering young innovators through structured mentorship, funding facilitation, and ecosystem collaboration under the Atal Innovation Mission, Niti Aayog. Sir, guidance on incubation, validation, and startup mentorship. Now, stage is yours, sir. Thank you, Sunilji, and thank you all those who have participated in the interesting webinar on the turning the dream into reality about the startup. And also, I'd like to thank Grow MSME. We here at the JNU, at the Atal Incubation Center, we are working in a team, our team, working to sort of foster the startup and entrepreneurial culture and mindset in the campus, and also tap the young minds and bright minds in and around the campus and also the elsewhere to tap the talent to nurture and incubate their ideas and to also to support them, handhold them, and coordinate with various agencies so that we can produce or help them grow as a sort of a unicorn from the country. As the Sunilji has mentioned that today this webinar is all about discussing about the practical aspects of startup. Generally, any discussion and debate or seminar or event on startup begins with mostly focused on the procedures and how one should they're looking for the funding support. But my personal also sort of a suggestion and my understanding is that the best way to understand or internalize any young entrepreneur or young minds who is in now in sort of thinking about startup should read more cases, the successful cases as well as failed cases, about that how different people attempted their ideas, sort of trying to turn into a dream into reality, and how they have failed. If you look at the last 2 3 years data, the startup has become one of the cultural aspects of the youngsters, especially Gen Z, I would say, thanks to the government of India's
ardent effort, particularly our Prime Minister Modi ji's. We never heard about this idea in the universities. We never even heard these things were not even discussed in the campuses. Particularly in campuses like JNU, predominantly social science campuses. Now we are also having these engineering and management schools, but this was not the case in most of the engineering colleges or even the IITs or even the other universities, central universities. But thanks to the Prime Minister Modi's his vision and his vision for Viksit Bharat, and if you want to achieve the Viksit Bharat, we have to have economically strong, and India should become the strongest economy in the world. And for that, we need to have more companies, Indian-based companies, Indian-owned companies in every sectors, all the top sectors. We have to have our own brand, which not only dominate the global market, but also have the vocal for local, branding the local items to the global aspects. These are the visions, and that is the purpose of this Atal Incubation, our JNU Innovation Foundation for Innovation and Incubation aims to bring the local startup ideas, indigenous ideas, to make it as a global brand value. So my understanding and my suggestion is that we need to study many case studies. There may be a case studies we have uh, in our own backyard. Many young minds have attempted and tried. The other day we were listening to one interesting lecture from the one young startup, space startup company, Digyandra. So the CEO, he was one of the founder CEO. He has narrated his journey of how he thought about the space startup, where the space is predominantly dominated by the government, not the private, no, not more private players. And if you look at the customers, the client for the startup, it is also very difficult there to have a private client, but there's a huge potential. So many areas now we are been discussing in the last 10 days the Indian version of WhatsApp, Zoho's Aratai, which has become very popular. Last month, couple of months back, in fact, I suggested to my team also, let's invite the Zoho's founder Sridhar Vembu. I visited the company in Tenkasi, South Tamil Nadu. I was so amazed to see this man had a vision 15 years back when everybody was dreaming to go to United States and settle down in Silicon Valley and build their own dream startup on the companies or the software companies. This man had the totally reverse thinking about coming back to villages, starting this software company, giving opportunities, employment opportunities to the locals, without compromising the global brand image, brand value. If you he is competing with the Microsoft, sitting in a remote corner of village, most of us have never heard about it, or never even not even in anywhere in the news. So that is an inspiration story. It inspires many young generations. These are the stories that we need to be discussed and taught in the school, in the startup, when you have the startup young minds, and they should learn from this experience rather than looking at the experience from the like the Steve Jobs or Bill Gates. These are the stories that we often read in their books, popular books. But there are a lot of unsung stories about our own indigenous brands. How many of us know our own the brands? Now today we are become the top brands like Godrej is a brand, and other brands in very other sectors. Most of us, how many of us know about these brands and their history and how they struggled, what are the hardship they faced, how they mobilized the funds. So I can keep on giving more examples. The other example is there is a Ramraj Cotton. He started his brand promoting the India's our own traditional costumes and dresses like pajama kurta. At the time of when the Levi's, Lee and other brands, the Reebok and other jeans brands and other T-shirts brands were competing in the global market. So he sanctioned
the brand and build this brand and now competing with the international standard and global level. So my suggestion to the young entrepreneurs is to look for the our own indigenous case studies, local case studies, which is there are huge lot of case studies where the indigenous case studies have built a, they are building the brand or they are built the brand. With this remark, this will inspire the young minds and also gives insights to the startups to what are the factors that went for the success and what are the factors that contribute to the failures. Success and failures is all the outcome of the efforts that we take, but we learn from the success, continue our effort, and one we will definitely build the brand and achieve what the aim of this particular brand that we are building. Our सुनील जी शायद डिस्कनेक्ट हो गया सर का. hello, I hope you are listening to me. I was speaking. Hello. Yes, sir, please. Uh, I hope you all listened to my. I was audible to you. Yes, sir. Where it got disconnected, sir. I was out. I was switched off. I mean, my got muted. Where it got muted because I was talking and looking at the phone. You were discussing about the emergence of Zoho. Yeah, see, the rise of Zoho is also one of the inspiring journey for young startup. So similar stories are there in every sector and every field, and now we are having more companies are coming up. A lot of the young minds are not looking for a 10 to 5 jobs. Rather, they are trying to practice. They're trying to build their dream and work hard to realize the dream of building some empire, building some brand or the brand image. So I think that this is the best. I mean, this is the forum to discuss more cases which are there and get that these cases would give us not only the insights but also gives the lessons that what are the factors that contributed to the failure of particular company or particular startup, particular attempt to become build a brand, and what are the factors that contribute to the success. The success and failures, as I said, it's an outcome of the efforts that we make. From success, we also try to build the next phase, but from failures also, we consolidated our efforts and correct ourselves and build a better brand. The JNU Atal Incubation Center aims to nurture this culture of the startup culture and also the entrepreneurial spirit of the young minds and help them to incubate their ideas and build their brand image. By 2047, and India should have the global brands. At most 70 to 80% of global brands, the business brands, so come from India. And I think that the youngsters today they have already put up effort. I visited some of the IITs, IIT Madras, and some of the private colleges where I've seen that the students, engineering college students, unlike our days, they go to the
They go to the classroom first and go to the practical classes. But I witnessed the university students, they are going straight away to the workshop, experimenting their idea, working on their idea, working on the concepts. Naresh, can you just mute yourself? Working on their ideas, working on the concept. This we could have had it 20 years back. Then by today we would have been in a better position. Number one economy. Remember for global political economy in 1990s, China was lagging behind us. What happened last 30 years, where China became a number two economy and phenomenal development is because of this lack of vision of the leadership to create the awareness or inculcate the spirit of entrepreneurial and startup culture among the young minds. Rather, what 30 years that we have been doing is preparing the students, graduates, and to build their dream abroad. So IIT products and our engineering products, they were going to America or Europe for better job or better companies to build their ideas. Never ever been motivated, never ever been created an ecosystem where they could incubate and build their own brand or the business. And Zoho is an example I've given, and there are many more cases in today we have been hearing in many, if it is the FMGC sector or if it's the manufacturing sector or even the defense sector, and our students or young men are actively involving in startups of various things. So with this, I'll end by saying that today we have not only have a robust ecosystem for incubating our own ideas in our own motherland, rather than going out abroad, being for let's say US or Europe. So it is better to have your ideas and build your startups in India and build your brand. You have a market, you have the favorable government which had eased many rules and regulations in favor of encouraging and motivating and building this ecosystem in every university campuses and every colleges. Thank you so much. Heartfelt thank you to Dr. Saab, Dr. J. Jagannath ji, for sharing such valuable insights. Your practical guidance and mentorship experience have given our participants a clear vision of how ideas can evolve into the impactful ventures. Now I'm requesting from our audience, if they have any questions to ask from Dr. Saab, so they can feel free to ask. Ashok sir? Yes, yes, Sunil. Do you have to share anything on Dr. Saab's experience? बहुत remarkable, it was a very remarkable speech by Professor Jagannathan sir. It's or nothing. The thing is that support system from JNU and Q Center is very important for us, and we are very happy to collaborate with that organization. और इस माध्यम से जो हमारे लोग साथ जुड़ रहे हैं, there are so many ideas coming there are startups who has some support from there, so we can do with the collaboration with the JNU AIM. So it's a good opportunity for us also. और जो सर ने बताया कि हमारे जो यंग जनरेशन है, इसमें आने चाहती है, जो बाहर जाके अपने को ब्रेन ड्रेन हो रहा है, there are so many things he has given the points. These all points are very important for us, and that's why we are here. That's why. Thank you, sir. Yes, Sunil ji, please. No more questions, sir? May I proceed further? Yeah, sure. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for the remarks. Thank you. Hello. I would request Saurabh sir. Is Ashish sir is joining us? He will be joining very soon. Okay. So I think we should move forward. Whenever Okay. he will join, I will let you know. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. I have a question.
Yes, please. Yeah, so this is the incubator center is based in like JNU. What is based in GNU? The incubation center which you're talking about, where it is based off. Yeah, it is based in JNU, our Atal Incubation Center. We call it Okay. JNU Foundation for Innovation. It is based in JNU, and we can provide the lab space and office space for the your startups, and we also provide the mentors, coordinated mentors to incubate, or there are procedures, process to be followed. Hmm. And what are the costs involved in? For that, I request my coordinator Saurav to give the details, and my CEO has the details. The two things the JNU placed in a better position. One is it is placed in the heart of the city, the location, and also it gives you that ambience, the quiet ambience, not like a very hectic, busy corporate office area. And the third, we have in-house scientists, all international reputation. And moreover, we are also now in the process of creating the incubating, planning to incubate the social entrepreneurs, social ideas, social entrepreneurs. Hmm. So that it's a part of a social responsibility, like many IIMs have now started, but it is in the planning stage. Apart from regarding the cost and all, I think Saurav, can you just give an idea about what is the approximate cost for the incubation for the potential incubator the startup? Yeah, yes, thank you, sir. So I'm Dr. Saurabh. I'm a co-coordinator of Atal Incubation Center Hmm. from Jawaharlal Nehru University. So the Okay. incubation process is absolutely free. But if Hmm. you want to take a physical office or physical lab, then it will be a Hmm. some cost. So for like if you want to work on the biological experiment, so there will be a 25,000 per bench. We have a tariff, and accordingly we have a space for office. If you want a big room, so accordingly it will be basically charged. So we have also bench work also. So around Hmm. 5,000 per bench we give for the office work Monthly or annually? monthly. Okay. And for the incubation, what are the services there? Like, and how you are like helping the new entrepreneurs and the at the which Well, stage they can come in? so they can come any state. Our main focus area is that whatever you have an idea, come with us, and Hmm. the availability of the resources like from mentoring. If you want, suppose we want for a health science startup or incubation. So we have expert, senior scientists, senior professors, Hmm. and some biotechnology companies that are associated with us. So accordingly, we will mentor you. And apart from it, especially for the financial, so like a DBT, BIREC, DST, and Feast and Nidhi from the DST. So there Hmm. are multiple calls from the different funding agency of the government. So we will align you. We will mentor you how to prepare your project, how you have to represent there. And apart from it, we have also collaboration with the HDFC Bank, SBI Bank, and Punjab National Bank. So how they are basically they do the CSR fund with us. So accordingly, we will also distribute that CSR fund to the our startup and incubating. Thank you, Saurabh sir. Oh. Let's do one thing, sir. If sir have more questions, we can arrange a meeting, a combined meeting, so that for more clarification and description. Okay, sir. We are running. I just have a last Yes, question. sir. Like, if I want to access the like place their incubator center there in the JNU, then how can I do so? And like, what's the timing when I can come there and visit if I want to?
Get in touch So- with Grow MSME. They will arrange it. Okay. Sorry. Get in touch with Grow MSME. They have a tie-up with the AIC JNUFI. You write an email. Okay. So because one-to-one question is okay. You got the flavor. So you will get the contact point. You please directly get in touch so that we can continue with the webinar. Okay. Thank you. Sure. Thank you. Thanks all. Please continue. Thank you. Now we move to for another session wherein our eminent speaker is Mr. Ashok Jha, the founder of Grow MSME, who will speak on idea to validation, structuring ideas, validating models, and approaching investors. So, sir, Ashok sir welcomes you. Yeah. All stage is yours. Thank you. Yeah, thank you, Suraj जी. हमने अभी बातें शुरू की. Idea, the subject of this topic of today is from idea to execution, turning dreams into startups. तो मैं ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, बिकॉज इसका जो मेन पार्ट हमने बांटा था, द आइडिया की वैलिडेशन की बात, अगेन द सपोर्ट एंड फंड्स एंड ऑल थिंग्स जो गुप्ता सर इसको कवर करेंगे. बट मैं बात करता हूँ आइडिया की. तो हम सब जानते हैं कि एवरी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बिगिंस विद अ स्पार्क, एन आइडिया. लेकिन क्या ये सारे के सारे आइडियाज बिजनेस में कन्वर्ट होते हैं? The answer is no. तो कारण क्या है? The journey from idea to execution क्या चाहिए होता है? मैं समझता हूं कि it's require clarity, courage, strategy and strong mentorship. और यही कारण है कि हम आज इकट्ठा हुए हैं, हम बात कर रहे हैं. हमारे साथ जी जगन्नाथ सर ने अपनी व्यूज को दिया, आशीष पांडे सर जो AIM से हैं, नीति आयोग से हैं, वो भी हमको ज्वाइन करेंगे. गुप्ता सर हैं, सुनील सर हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं इसके साथ, और भी आप सब बैठे हुए हैं. द रीजन बिहाइंड इट कि हम इसको फाइंड आउट करें कि आखिर हमें आइडिया को एक बिजनेस बनाने के लिए चाहिए क्या होता है. ये हमारे दिमाग में इतने सारे आइडियाज आ रहा होता है, हम उसको बिजनेस में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते, रीजन क्या है? तो मैं एक पार्ट लेके चलता हूँ. आइडिया टू वैलिडेशन मीन्स सेटिंग आइडियाज इनटू मार्केट रेडी कंसेप्ट्स. क्योंकि ये तो हमें पता है कि एवरी बिग बिजनेस स्टार्टेड विद अ स्मॉल आइडिया, बट ओनली वैलिडेटेड आइडियाज टर्न्स इनटू सक्सेसफुल वेंचर्स. क्योंकि आइडिया इज जस्ट अ बिगिनिंग. द की वर्ड इज वैलिडेटिंग इट. इंश्योर कि क्या ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, क्या लोगों तक पहुंचने वाला आइडिया है, क्या ये रियल मार्केट में वर्क करेगा. यानी अगर वैलिडेशन हम कर लिया आइडिया को हमने, तो वी कैन रिड्यूस रिस्क, वी कैन सेव मनी एंड वी कैन बिल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. हमारे को इन्वेस्टर भी उसके लिए आसानी से मिल जाएगा. तो एक्चुअल में ये आइडिया वैलिडेशन है क्या? तो मैं ये कह सकता हूं कि आइडिया वैलिडेशन मीन्स टेस्टिंग वेदर योर कंसेप्ट हैज पोटेंशियल डिमांड, विजिबिलिटी एंड वैल्यू बिफोर फुल स्केल एग्जीक्यूशन. आपको मार्केट में फुल फ्लेजेड उतरने के पहले आपको इस पे विचार करना होगा, इसको वैलिडेट करने के लिए. अगर हम सब जानते हैं कि जो हम आइडिया लेके आ रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चन को दिमाग में डाल लें कि डज द प्रॉब्लम रियली एग्जिस्ट, क्या हम जिस बिजनेस को लेके आने की बात कर रहे हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि हम प्रोडक्ट नहीं लाते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं. वी आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, वी सेल द प्रॉब्लम्स. डज द प्रॉब्लम रियली एग्जिस्ट? क्या ये समस्या है हमारे सोसाइटी में? क्या हमारा सोल्यूशन जो हम लेके आ रहे हैं वो रिलेवेंट है या यूनिक है? क्या लोग इसके लिए पे करेंगे, हमारे को पैसा देंगे हमारे को इसके लिए? क्या ये आइडिया मार्केट के
एक लार्ज लेवल तक हम ले जा सकते हैं? अगर ये सवाल आता है तो इट मीन्स वी आर एबल टू वैलिडेट आवर आइडियाज। अगर इस सवाल को पहले हम ढूंढ लेते हैं, अब सवाल है कि हम कैसे वैलिडेट करें, क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसके? तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। मतलब स्टार्ट विथ अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट नहीं बनाने जा रहे हैं, आप बिजनेस में आ रहे हैं, किस प्रोडक्ट को लेकर नहीं आ रहे हैं। आप स्टार्ट करिए प्रॉब्लम के साथ में कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। यानी आपको इंडस्ट्री का, कम्युनिटी का पेन पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना है। दर्द क्या है जिसको आप निपटाने के लिए खड़े हो रहे हैं। आपको अपने से पूछना पड़ेगा क्या इसके चलते लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग परेशान हैं? मतलब साफ है कि यू हैव टू स्टार्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। उसके बाद आपको टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना चाहिए कि कौन से लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एंड हु एग्जैक्टली फेसेस द प्रॉब्लम। आपको अपने आइडियल कस्टमर्स को, उनके एज ग्रुप को, इनके इनकम ग्रुप को, उनके हैबिट्स को, उनके गोल्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जितना क्लियर आपका ऑडियंस आपके सामने होगा, आप समझ लीजिए उतना ही स्ट्रांगली आप अपने आइडिया को वैलिडेट कर लेंगे। मैं अगेन बार बार कहूंगा कि अगर जब तक वैलिडेट नहीं करेंगे आइडियाज को, तब तक अगर आप बिजनेस में कूदते हैं तो 10 में से 10 असफल हो जाते हैं। हालांकि हम लोग उसको असफल नहीं कहते, हम लोग कहते हैं या तो सफल होते हैं या सीखते हैं, तो सीखने के मौका मिलता है। बट आप अगर इस तरह से मार्केट में घुसते हैं तो शायद आपका काम बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद से उस सॉल्यूशन को अपने हिसाब से एक सिंपल वर्जन में डिजाइन कर लीजिए। उसके बाद लोगों का फीडबैक को कलेक्ट करिए, स्केलिंग करिए उसकी फीडबैक की। बिफोर स्केलिंग यू हैव टू कलेक्ट रियल यूजर्स फीडबैक। जैसे मैंने कहा कि जल्दी अगर फेल होते हैं तो जल्दी आपको सीखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाए उसमें। आपको मार्केट फीडबैक की लेना होगा, टेस्टिंग करनी होगी। उसके लिए आपको सर्वे करना चाहिए, लोगों का इंटरव्यू लेना चाहिए, प्राइसिंग की वैलिडेट करना चाहिए उसका। यानी आपको लोगों के रिस्पॉन्सेस पे आपको अपने आइडिया को वैलिडेट करना चाहिए। मतलब साफ है कि पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, फिर टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करिए अपना, फिर उसको सॉल्यूशन के लिए उसको आगे बढ़िए, डिजाइन करिए और मार्केट फीडबैक लीजिए कि वो किस तरह से वहां पे फिट बैठता है या नहीं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप मार्केट सर्वे लेते हैं तो कुछ टूल्स काम आते हैं जिसको जो आपके आइडिया को वैलिडेट कर सकता है। जैसे बताया सर्वे पोल्स, आप गूगल फॉर्म्स या ऐसे भी कोई सर्वे करा लीजिए। अगर इसकी अगर आपके पास में है तो सर्वे कर लीजिए, अदरवाइज खुद सर्वे कर लीजिए। कोई लैंडिंग पेज लॉन्च करें जिसमें लोग आपको बता सके उसके बारे में। सोशल मीडिया को कैंपेन कर सकते हैं, वहां पे आप थोड़ा सा ऐड निकाल सकते हैं, दे सकते हैं, लोगों का इंटरेस्ट लग सकता है उससे। मार्केट रिसर्च, आप अन्य तरह के डेटा मार्केट में है, लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, कर रहे हैं, रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या गवर्नमेंट के बाहर की हो, उसके बेसिस पे भी आप इन टूल्स को यूज करके आप इस वैलिडेट कर सकते हैं अपने आइडियाज को। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं तो जोमेटो को ले लीजिए। जोमेटो ने क्या किया था? ये स्टार्टेड एज एन आइडिया टू हेल्प पीपल फाइंड रेस्टोरेंट मेन्यूज। पहले उसने क्या किया था? उसने क्या सोचा था कि कितना कन्वीनियंस हो सके लोगों के लिए, और उस आइडिया के लिए उसने टेस्ट किया। उस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के पहले आइडिया को वैलिडेट किया, देन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया और उसको स्केल अप कर दिया नेशन वाइड पे। तो आपको भी ऐसे करना होगा। मैं अगर कहूं कि कुछ चेकलिस्ट की अगर बात कर लें तो जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ क्वेश्चंस अगर आप अपने दिमाग में रख लें, जैसे डज इट सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम? क्या आपका आइडिया रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? आपका आंसर आया यस। क्या इसकी टारगेट ऑडियंस है?
द आंसर इज यस। क्या लोग इसको खरीदने के लिए तैयार हैं, पे करने के लिए तैयार होंगे इसको? आंसर है यस। क्या ये टेक्निकली भी पॉसिबल है? आंसर इज यस। क्या मार्केट इसका बड़ा है जितना चाहिए हमारे को आगे बढ़ने के लिए? द आंसर इज यस। क्या आपके कंपटीटर्स ऐसा ही कुछ कर रहे हैं? अगर इन सब सवालों में से अगर आपको, मुझे लगता है कि 4 to 5 of these answers are yes, I think your idea is ready for execution. यानी आप अपने आइडिया को लेके मार्केट में उतर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गलतियां क्या करते हैं हम लोग कि हम आइडिया मन में आया, हमने किसी का बिजनेस देखा, हमें लगा कि हाँ ये कर सकते हैं, इमोशनली हम उस आइडिया के पीछे भाग रहे हैं, हम बिना टेस्ट किए हुए प्रोडक्ट को लेके चले आते हैं और हम अपना समय बर्बाद करते हैं, फेल हो जाते हैं कई बार। बिना रिसर्च के हम अपने आइडिया को यूनिक समझ लेते हैं कि मेरा आइडिया सबसे बेहतर है। हम कस्टमर के फीडबैक को इग्नोर करते हैं, हम उसको नहीं ध्यान देते हैं उस पर। हमें लगता है नहीं जो लोग बोल रहा है वो शायद मैं जो कह रहा हूं वही सही है। हम कई बार डिमांड को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतना डिमांड तो होगा ही इसका। तो इस कारण से कई बार हम अपने आइडिया को बहुत प्यार करते हैं, लगता है कि नहीं यार तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देगा, और हम इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो एक स्टार्टअप को अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के समय में ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो गुरु एमएसएमई हमने जो बनाया है और जो हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे कि उसमें से जेएनयू है, इंक्यूबेशन सेंटर उनका है, और भी कई सारे जगह है। तो हमारा यही होता है कि हम गुरु एमएसएमई के थ्रू अपने एंटरप्रेन्योर को हेल्प कर सके, उनको हेल्प कर सके कि वो अपॉर्चुनिटी को, उस सेक्टर की अपॉर्चुनिटी को पहचान सके, वो उनको हम गाइड कर सके, उनके आइडिया को वैलिडेट करने में सर्वे करा सके, उनके पास प्रोजेक्ट को लेके आया, एक्सपर्ट की मॉनिटरिंग मेंटरिंग करा दे उनके साथ में, ये सारा का सारा। या फिर उसके बाद से अगर उनको फंडिंग के, जैसे सर ने बताया कि इंक्यूबेशन सेंटर है, उस तरह से बैंक है और भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उस तक उनको पहुंचाएं और उनको आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करें। यानी हम लोग, अगर मैं एक लाइन में कहूं, वी डोंट जस्ट इंस्पायर आइडियाज, वी हेल्प वैलिडेट एंड मेक देम रियल। तो अगर मेरी बात अगर कहें तो मेरा ये कहना होता है कि आइडियाज आर वेरी इजी। बड़ी दिमाग हमारी चल रहा होता है, बड़े सारे आइडिया दिमाग में आते हैं, और ऐसा आइडिया नहीं कि आप ही के दिमाग में आता है और हमारे भी दिमाग में आता है, सबके दिमाग में आता है। जो एग्जीक्यूट कर पाता है वही आगे बढ़ पाता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज वेरी हार्ड। आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, उसको आइडिया को वैलिडेट करना पड़ता है, मतलब रियलिटी टेस्ट करना पड़ता है। तो आइडियाज तो सबके पास होते हैं, बट जो एग्जीक्यूट करने की बात करता है वो आगे आता है। मीन्स आइडियाज आर वेरी इजी बट एग्जीक्यूशन इज हार्ड। और मैं कहता हूं कि वैलिडेशन मेक्स एग्जीक्यूशन वेरी मच पॉसिबल। ये मेरा मानना है इसको लेके। मैं समझता हूं कि आइडिया को वैलिडेट करने के लिए जो मैंने पॉइंट रखा, उस शायद हम सबके जो लोग आगे आने वाले लोगों को काम आएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द प्रैक्टिकल इंसाइट्स। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने इतने सिंपल वर्ड्स के अंदर हम लोगों को एक्सप्लेन किया और हमें गाइड किया, तो ये सब हम सब अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगेन, आइडिया, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंट, तभी तो आउटकम आएगा। इसको आपने जिस तरीके से आज डिस्क्राइब किया सर, इट्स रियली अप्रिशिएट। और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सारे फीडबैक हमें ऑडियंस से भी आएंगे, जो हमारे प्रोमिनेंट गेस्ट आज आए हैं। किसी का कोई फीडबैक हो सर के इस स्टेटमेंट के ऊपर, या कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज वी आर फील फ्री टू आंसर इट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा सुनील, मैं चाहता हूँ क्योंकि टाइम का भी इतना होता है सबके साथ में, तो हमने एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, जैसे गुप्ता सर ने कहा, उस पर आप क्वेश्चन को डालें तो हम उसको अलग से भी आंसर कर सकते हैं और वन टू वन भी बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ओके सर, we can take it that way. Now it's time to invite our next speaker, CA HK Gupta ji, who will speak on the support system and execution, and he will covering compliance, governance, and execution frameworks for us. Thank you, sir. Please welcome.
तो आइडिया वैलिडेट हो गया। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ विल टॉक बिजनेस। हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे मन में आइडिया है उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी जर्नी को हम आप लोगों के साथ डिस्कस करें। ठीक है, आवाज सबको आ रही है? बीच बीच में जो समझ में आए और जो ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहना, जिससे मुझे पता चलता रहेगा। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि एक स्क्रीन शेयर हो जाए थोड़ी सी, तो उससे थोड़ा सा लोग। ओके, ये पूरा पे नहीं जा रहा है ये, बेटर आई थिंक। ओके, ऑप्शन आ रहा है नीचे, वाइडर ऑप्शन उसका ना, वाइडर स्क्रीन का, तो एवरीवन कैन क्लिक ऑन दैट। कहाँ पे, किसमें? वैसे आप अपने सिस्टम में मोबाइल पे जहाँ भी देख रहे हैं, नीचे ना आपकी जहाँ पे पीपीटी आ रही है, नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक वाइडर ऑप्शन आता है, वाइडर स्क्रीन का ऑप्शन आता है। मैंने क्लिक किया तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो गई है। ओके, देखो टेक्नोलॉजी में ये कृष्ण कुमार नहीं, लेकिन इससे समझ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है ना? ठीक है, आप स्टार्ट करिए। ठीक है, अच्छा है। ठीक, तो हम लोग अभी बात करेंगे कि ये जो आइडिया हमने वैलिडेट किया है, अब इससे आगे क्या करना है। ठीक है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ना हम लोग हिंदी में बात करेंगे, मतलब साधारण बोलचाल वाली भाषा में बात करेंगे, जिसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा, या जो आपको समझ में आए उसमें मिक्स होगा। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए किसी भी आइडिया को वैलिडेशन के बाद एक राइट डायरेक्शन जरूरी होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में शायद 20 साल से ऊपर के लेट से 100 करोड़ लोग हैं, तो भारत में हमारे पास 100 करोड़ आइडियाज अवेलेबल हैं। ठीक है, उसमें से 10-15 करोड़ वैलिडेट भी हो जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कितने होते हैं? भारत में इस समय करीबन 1,80,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं जो कि किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं। उन 1,80,000 लोगों में से करीबन 20,000 ऐसे हैं जो कि किसी लेवल पे पहुंचे हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से अगर हम कहें कि सिर्फ 20,000 आइडियाज आगे पहुंचे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वजह तो ऐसी रही होगी कि वो बीच में क्यों रहे, क्यों अटके, क्यों बंद हो गए, क्या उन्हें और करना चाहिए था कि जिससे वो सफल हो जाते, और आप लोग ऐसा क्या करें जिससे कि ये प्रॉब्लम आपके साथ ना आए। ओके, तो ये सब कुछ समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जरूरी होता है। एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या जरूरी है? क्या मैन, मशीन, मनी, ये सब कुछ चाहिए ना, मार्केट, मैन पावर। ठीक है, तो इसमें इस कड़ी में अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो टीम चाहिए। टीम का मतलब है, मैंने अगर किसी अपनी आइडिया पे काम किया है तो मुझे अपने साथ काम करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि सारा काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है मैं किसी एक कला का, जैसे मार्केटिंग है, अकाउंट्स है, बिजनेस के लिए जरूरी होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, तो मैं किसी एक फंक्शन में या किसी एक डिपार्टमेंट में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो बाकी के काम के लिए मुझे और लोग चाहिए होंगे। तो और लोग होते हैं जो एक बिजनेस में या एक प्रोडक्ट के ऊपर मिलके काम करते हैं, उसको हम टीम कहते हैं। टीम में कौन कौन कंपोनेंट हो सकता है कि एक तो मेरे साथ जो काम कर रहा है उसे हम को फाउंडर कहते हैं स्टार्टअप्स की भाषा में। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉप मैनेजमेंट हो सकता है। टॉप मैनेजमेंट का मतलब है कि वो लोग जो स्ट्रैटेजी बनाने में लगते हैं, या कंपनी का विजन या कंपनी की प्लानिंग डिसाइड करने के काम को करते हैं, वो हमारा टॉप मैनेजमेंट होता है। वो हाईली स्किल्ड होते हैं, उनको मार्केट की समझ होती है, उन्हें प्रोडक्ट की समझ होती है, उसके बेसिस पे वो जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और वो स्ट्रैटेजी अगर सही बनती है तो हमारी कंपनी सफल होती है। तो इसलिए इस जो टॉप मैनेजमेंट की टीम का है, इसका स्किलफुल और एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
तो जब मैं एज ए ओनर अपनी टीम सेट कर रहा हूं तो उसको मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या उसमें वो स्किल है जिससे कि वो आगे आने वाले समय में की जो चैलेंजेस होंगे, जो जरूरतें होंगी, उनको पूरा कर पाएगा और इस कंपनी को गाइड करेगा टुवर्ड्स द गोल्स। और गोल्स क्या होता है कि सारे स्टेक होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करना, इंक्लूडिंग योर कस्टमर्स, इज द पर्पस ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, ये टीम हो गई, प्रोडक्ट, फंडिंग, मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन। तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को समझेंगे कि इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए एक बिजनेस ओनर को या एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि उसके सक्सेस की जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो और उसको फेल्योर की जो डर है वो ना रहे, और जिससे कि वो एक लॉन्ग रन में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीम को कैसे करना है। ठीक है, ये हम देखते हैं कि ओके, तो टीम पर नीचे हो गई है स्लाइड्स। यस, तो राइट टीम का क्या मतलब है? देखिए, कई बार क्या होता है कि राइट टीम, दो लोग अगर साथ में काम करते हैं तो उन लोगों के विचार मिलने जरूरी हैं। अगर उनके विचार ठीक से नहीं मिलेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और कंपनी की कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो कंपनी सफल नहीं होगी। आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं कि जितने स्टार्टअप फेल होते हैं बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, कुछ स्टार्टअप्स तो ऐसे होते हैं ना कि आइडिया उसने लॉन्च किया और वो चल ही नहीं पाया, वो प्रॉफिट कमा ही नहीं पाया, स्केल कर ही नहीं पाया। लेकिन जितने स्टार्टअप फेल होते हैं बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद, आफ्टर रीचिंग टू ए पॉइंट, जब ये लगता है कि अब हम बड़े बन सकते हैं, अब हम सफल हो सकते हैं, तो ऐसे स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं उनमें सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि जो को फाउंडर्स होते हैं उनके विचार नहीं मिल रहे, इसलिए वो सबसे ज्यादा फेल होते हैं। तो क्या हुआ कि एक बनी बनाई कंपनी जिसमें अच्छा खासा बिजनेस हो रहा था वो क्यों बंद हो गई? क्योंकि उनके फाउंडर्स जो थे, आपस में जो प्रोमोटर्स थे, उनकी बनी नहीं। बनती क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उनके विचार, उनकी कल्चर, उनका वैल्यू सिस्टम वो मैच नहीं करता। तो इसलिए जब हम को फाउंडर अपना डिसाइड कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि उनका हमारा वैल्यू सिस्टम मैच करता है या नहीं करता। वैल्यू सिस्टम का क्या मतलब है? मेरा कल्चर क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिंपल आदमी हूँ, सामने वाला मेरा को फाउंडर लालची है, उसको अपने स्टेक की चिंता है कि मेरा स्टेक ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसे यह है कि मैं किसी तरीके से पैसे बिजनेस में से निकाल लूं, बचा लूं। तो जहां आप स्केलिंग की बात कर रहे होंगे, जहां आप ये सोच रहे होंगे कि हम जो भी कमा रहे हैं, जो भी रेवेन्यू आ रहा है, उसे हम अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करें जिससे कि हमारी कंपनी तेजी से बढ़े, और आपका को फाउंडर अगर इस चक्कर में लगा हुआ है कि मैं कंपनी में से पैसे निकाल लूं या अपने स्टेक को बढ़ा लूं, तो आपकी पटेगी नहीं। ठीक है, तो आप में धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे, और जब कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे तो आप पूरे मन से उस कंपनी की सफलता के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो जब आप पूरे मन से अपनी कंपनी की सफलता के लिए काम नहीं कर पाएंगे तो आपकी कंपनी इज बाउंड टू फेल। तो ये तो हो गया आपको फाउंडर वाला। अब आइए आप टॉप मैनेजमेंट के ऊपर। टॉप मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्किलफुल होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, सो दैट वो उसके से रिगार्डिंग पॉलिसीज बना सके, उस प्रोडक्ट में इनोवेट कर सके, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सके। तो उसके लिए उसमें वो क्वालिटी होनी जरूरी है। तो अब हम, जबकि हम एक वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम अपने कल्चर की बात कर रहे हैं, तो देखिए स्किल जरूरी है। अगर इस लेवल का कोई बंदा आ रहा है तो आपको उसका स्किल देखना ही है, लेकिन उस स्किल से ज्यादा चीज जो जरूरी है
वो उसका वैल्यू सिस्टम, कल्चर और एटीट्यूड की जरूरत है, क्योंकि एटीट्यूड, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, तो ऐसे ही आपका एक एटीट्यूड है, आपका लर्निंग एटीट्यूड है, आप अपने आप को इनोवेशन का आपका एटीट्यूड है। तो अगर ये एटीट्यूड आपका मैच करता है विद द टॉप मैनेजमेंट और प्रमोटर्स, तो आप यू कैन वर्क विद एज ए बेटर टीम। दूसरा, आपको ये इंश्योर करना है कि जो चीज मैक्सिमम चीज आप इंश्योर कर रहे हैं अपने को फाउंडर को सेलेक्ट करते समय, वैसी ही चीजें आपको को अपने टॉप मैनेजमेंट को सेलेक्ट करते समय भी ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका कल्चरल मिसमैच होगा, आपका एटीट्यूड और आपके टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड मैच नहीं कर रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म में किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे। आपके भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे, और जब कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाएंगे, कोल्ड वॉर की सिचुएशन होगी, तो आप उस स्ट्रैटेजी से या उस पैशन के साथ आपकी कंपनी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा जो मैक्सिमम जरूरत है कि हम अपने टॉप मैनेजमेंट को अपने हिसाब से, सो दैट हमारी वेवलेंथ मैच हो। सेम अब आपकी क्या हो गया, टॉप मैनेजमेंट के बाद आपका मिडिल मैनेजमेंट और वर्कफोर्स, जो कि वास्तव में बच्चा कस्टमर के पास जाता है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करता है, वो हमारी फ्रंट फोर्स होती है। जैसे अगर जोमेटो का एग्जांपल लें, तो जो बच्चा आपके दरवाजे पे सामान की डिलीवरी लेके आता है, वो डिलीवरी बॉय है। तो उनको सेलेक्ट करते समय भी उनका एटीट्यूड और उनकी मेहनत करने की या काम करने की जो एक एटीट्यूड है, उसको मैप करना होता है। एक बार जब सेलेक्ट हो गई, सारी की सारी टीम सेलेक्ट हो गई, तो नाउ अब आपको उससे काम कराना है। तो काम कराने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? एक तो सबसे पहले ना आपको उसे अपने हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग इज मस्ट। ट्रेनिंग किस किस चीज की देनी है आपको उसे? सबसे पहले उसे कंपनी के कल्चर और वैल्यूज की ट्रेनिंग देनी है, फिर उसके बाद आपको उसको अपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी है, फिर आपको उसे उस प्रोडक्ट पे क्या कैसे उसकी डिलीवरी होनी है, जो भी उसका डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्लैरिटी उसे देनी है। ये ट्रेनिंग उसे देनी है। एक बार जब आप उसे ट्रेन कर देंगे, तो फिर आपको उसे मोटिवेट करना है कि वो काम कर पाए, क्योंकि ये ह्यूमन एंगल है एक इस रिसोर्स का। तो ह्यूमन एंगल प्रॉब्लम ये है कि ये टच ऑफ बटन पे काम नहीं करता। ह्यूमन हैव फीलिंग्स, ह्यूमन हैव इंटेलेक्ट, ह्यूमन हैव देयर इमोशंस। तो उससे काम कराने के लिए हमें उसके इन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम उससे वो डिजायर्ड रिजल्ट्स ले पाएंगे। अब मोटिवेशन के बाद भी अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम कंपनीज में ट्रेनिंग भी है, मोटिवेशन भी है, लेकिन कुछ कंपनियों का जो रिजल्ट है वो ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, बड़ा है, तो कहाँ डिफरेंशिएशन होता है? तो उस डिफरेंशिएशन को लेके आने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयज को एंगेज करना पड़ता है कि आपको ये देखना है कि वो कैसे एंगेज हैं, कैसे हम उनके कामों में या उनकी अपनी कंपनी की स्ट्रेटजी के लिए उनसे के साथ ट्रांसपेरेंटली बात कर रहे हैं, कंपनी के फ्यूचर में उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। मतलब उनको एक लार्जर बड़ी फैमिली के रूप में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो देखेंगे कि जो टाटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, that is a very good place to work because they take care of their employees to a great extent। वो उनका ध्यान रखते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको रेम्युनरेशन ठीक से देते हैं। तो these type of cultures अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लेके आते हैं, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब क्या है कि हम लोगों को बहुत तेजी से स्केल करना है। स्टार्टअप के सक्सेस का सबसे बड़ा राज यही है कि कंसेप्ट यही है कि हमें तेजी से स्केल अप करना है। तो उसके लिए हमें अपनी टीम का एंगेजमेंट जरूरी है, उसके साथ ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, मोटिवेशन उसका जरूरी है। तो इस तरीके से, और एक जो टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, कि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी है, कंफ्यूजन नहीं है।
तो फिर आप उससे ठीक से काम करा पाएंगे। ठीक है, अब टीम हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं कि एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कैन बी एनी गुड्स, कमोडिटी, और आपकी सर्विसेज भी हो सकती है। ओके, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आप उसे कोई गुड्स बना के दे रहे होंगे, अगर आप सर्विसेज में हैं तो आप उसको वो सर्विसेज दे रहे होंगे। अब क्योंकि ये आपका डिलीवरी आइटम है, तो आपकी जो सक्सेस है वो सारी की सारी इसी डिलीवरी आइटम की क्वालिटी के ऊपर, और क्या उस क्वालिटी को आपने अपने कस्टमर को ऑफर किया, कैसे आपने ये इंश्योर किया कि वो आपका गुड्स और सर्विसेज की सेल बढ़े, तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो आप, अच्छा इसमें क्या होता है कि हम ना बहुत सारा टाइम इसमें लगाते हैं। कई बारी हम कहते हैं कि नहीं जी इस प्रोडक्ट में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, हम लगे रहते हैं उसमें, और उसका जो लॉन्च है वो हम डिले करते रहते हैं। एक्चुअली ये जो बेंचमार्क ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ना, ये किसी के पास नहीं है। कई बार क्या होता है, बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं और सिंपल सा प्रोडक्ट हिट हो जाता है। तो आपको अपनी तरफ से बेस्ट प्रोडक्ट बना के और फिर उसे लॉन्च करना है मार्केट में, बिकॉज कस्टमर इज द गॉड, ही विल डिसाइड कि आपका प्रोडक्ट हिट है या आपका प्रोडक्ट फेल है। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं बाय स्टडीइंग इन डिटेल कि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे प्रोडक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरे प्रोडक्ट में क्या यूएसपी होनी चाहिए, या मैं अपने कस्टमर्स को मैं स्टडी करके मैंने क्या फीचर्स उसमें डाले हैं और मेरा प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है बाकी सबसे, ये आपने दे दिया। अब ये जब आप मार्केट, तब मार्केट कस्टमर उसको टेस्ट करेगा। आपकी ड्यूटी इस समय ये है कि आप वो जो फीडबैक सिस्टम है आपका, वो आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सो दैट आप उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर पाए। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो हर इंसान के दोस्त होते हैं, यार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, कजिन्स होते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कि वो अपनी समस्याएं और अपनी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो उन्हें बेसिकली उस प्रोडक्ट को लेके उन सब लोगों के पास जाना है जिनके आइडियाज को या जिनके विचारों को वैल्यू करते हैं, और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आप इसे टेस्ट कीजिए और आप मुझे 10 रीजन बताइए कि आप इस प्रोडक्ट को क्यों यूज करेंगे और क्यों यूज नहीं करेंगे। ओके, और आप खुद भी उसे खोल खोल के देखिए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, इसमें क्या अच्छी चीजें हैं, इसमें क्या बुरी चीजें हैं, इसको क्या इंप्रूव किया जा सकता है। और विद फीडबैक ऑफ द मार्केट आपको उस प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है, छोड़ना नहीं है, बिकॉज आपका मार्केट, आपका कस्टमर इज द बेस्ट फीडबैक और बेस्ट क्रिटिक ऑफ योर प्रोडक्ट। अब उसमें आपकी जो स्पीड है इसकी, वो इतनी होनी चाहिए कि आप क्विकली अपने प्रोडक्ट में इंप्रूव कर पाए। इसको हम बोलेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब आपके ऊपर है कि आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन क्या है। इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, इफ यू वांट टू बी द डिफरेंट, तो आप कहेंगे कि ये मेरा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट डेवलप हो गया। अब मैं कह सकता हूं कि यस आई एम डिफरेंट, माय प्रोडक्ट क्वालिटी इज बेस्ट, और जिस प्राइस पे और जिस कस्टमर सेगमेंट को मैं कैटर कर रहा हूं, उस कस्टमर सेगमेंट के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है, और अपने कस्टमर सेगमेंट की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जो प्राइस मैंने इसका रखा हुआ है दैट इज द बेस्ट, और आई एम वेरी श्योर कि इस प्राइस पे मेरा कस्टमर इस प्रोडक्ट को मेरे से खरीदेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड ये हम लोगों का है। अब दूसरा क्या है, अगर इस प्रोडक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कि इस समय आप लोगों को डिस्कस करनी जरूरी है, कि आज से अगर हम 50 साल पुरानी बात करें तो वहां पे ब्रांड्स की लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। आप देखेंगे कि एक चीज पिताजी भी यूज करते थे, फिर हमने भी यूज की, बच्चे भी यूज कर रहे हैं। पहले पंखे एक ही ब्रांड के चलते रहा करते थे, अब क्या देखते हैं आप,
अभी अगर आप आईफोन की बात करें तो कितना 15 16 17 आ गए ना, तो जैसे ही नया आता है तो पुराना वाला धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट होने लगता है। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल आजकल छोटी हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट मैंने आज मेरे मार्केट में दिया, इसका मतलब वो थोड़े समय बाद ऑब्सोलीट होने वाला है। तो जब वो ऑब्सोलीट हो जाएगा तो धीरे धीरे उसकी सेल कम हो जाएगी, तो सेल कम हो जाएगी तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बने रहने के लिए लंबे समय तक मुझे अपने प्रोडक्ट पे कंटिन्यूअस इनोवेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करता रहता हूं तो इसका मतलब मैं लंबे समय तक रह पाऊंगा, और मुझे अपने प्रोडक्ट के एक्सटेंशंस, न्यू प्रोडक्ट, जरूरतों के हिसाब से उसकी नई एक्सेसरीज, ये सब कुछ हमें उसमें प्लान करनी पड़ेगी, सो दैट मैं उस मार्केट में लंबे समय तक रह सकूं अपने उस प्रोडक्ट के जरिए। नहीं तो बाजार आपको बाहर कर देगा। ठीक है, और इस सारे कामों के लिए जो फीडबैक की जो हमने बात की थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपने एक सिस्टम बना रखा है कि आपके प्रोडक्ट का फीडबैक आप कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने कस्टमर से लेते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को समय समय पे इनोवेशन के थ्रू इंप्रूव कर पाएंगे, एंड दैट इज द की। दिस इज द थिंग फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद अब हमारा प्रोडक्ट बन गया, अच्छा हो गया, हमारा चलने लगा बिजनेस, तो अब आगे आने वाला समय किस बात का है कि अब हमें स्केल करना है। अब स्केल है, बिजनेस हो गया, तो अब इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट की साइकिल पूरी हो गई, तो अब आपके पास पैसे आने लगे। ठीक है, अब आ गई आपकी फंडिंग। अब इस फंडिंग के दो तरीके से हम इसे स्टडी करेंगे, क्योंकि फंडिंग एक ऐसा डायनामिक टूल है बिजनेस का कि वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आपको पैसे चाहिए क्योंकि आपको माल खरीदना है। ठीक, लेकिन जब आप बेचते हैं किसी माल को तो अगेन आपके पास क्या आता है? पैसा आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फंडिंग है ये आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है। आपको धंधा शुरू करना है तो आपको फंडिंग चाहिए। ठीक है, और ये बिजनेस करने के बाद भी आपको क्या चाहिए? रिटर्न में भी पैसे ही चाहिए। तो ये एक डायनामिक सा टूल हो गया। तो अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर किसी बिजनेस को करने के लिए अगर आपको 1000 रुपए चाहिए और आपके पास 900 रुपए हैं तो आपका धंधा नहीं चलेगा। ठीक है, देयर इज नथिंग 90%। वो क्या होता है ना, एग्जाम में तो हम पास हो जाते हैं ना 33% पे, 60% पे फर्स्ट डिवीजन आ जाती है, फिर डिस्टिंक्शन आ जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम ये है कि या तो आप पास हो या फेल हो। अगर 100% है तो है, और अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई इंग्रेडिएंट लगना है तो आधे से काम नहीं चलेगा, उसमें पूरा चाहिए। जब तक सारी चीजें पूरी नहीं होंगी तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको क्वांटम ऑफ फंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और आपको अपनी साइकिल का स्टडी करके ये ज्ञात करके रखना है कि भाई मेरे को इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मेरे को इतने का माल खरीदना है, इतने की मेरी सैलरी जानी है, इतने का मेरा बिजली का बिल जाना है, इतने का मेरा पानी का बिल जाना है, इतने पैसे मेरी गाड़ी के पेट्रोल में लगेंगे। ये साइकिल मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से अगर किसी भी चीज की व्यवस्था मेरे पास नहीं है तो आपका काम रुक जाएगा। ठीक है, और मुझे ये भी पता चलना चाहिए कि ये जब मैं इस पैसे को लगा के अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करूंगा तो वहां से पैसे मेरे को कितने दिन बाद मिलेंगे। लेट्स से आज हमने 30 तारीख तक कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट पे बेच दिया और मेरा कस्टमर मेरे को 60 दिन में पैसे देता है,
तो 31 अक्टूबर को बेचा तो 31 दिसंबर को मेरे पास पैसे आएंगे। ठीक है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जब तक मेरे पास पैसे आएंगे तब तक मेरी कंपनी का काम कैसे चलेगा। इसे हम हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास 31 दिसंबर को पैसे आएंगे तो मुझे अक्टूबर के लिए पैसे चाहिए, नवंबर के लिए पैसे चाहिए और दिसंबर के लिए भी पैसे चाहिए। तो अगर मेरी एक महीने की रिक्वायरमेंट 1 लाख है तो मेरी 3 महीने की रिक्वायरमेंट 3 लाख रुपए की व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी, तो अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए। अगर मेरे पास ये 3 लाख रुपए नहीं है तो इसका मतलब मुझे उनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो 15 नवंबर के बाद मेरी गाड़ी रुक रुक के चलने लगेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने कभी बिजली के पैसे नहीं दिए तो बिजली कट गई। अगर मैंने गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला तो मैं ट्रेवल नहीं कर पा रहा। अगर मैंने लोगों को सैलरी नहीं दी है तो फिर वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई मेरा रॉ मटेरियल नहीं आया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी फैक्ट्री बंद हो गई। तो इसको हम कहते हैं स्मार्ट फंडिंग। अब कैसे पूरा करेंगे इसे? आपको पता है कि आपको 3 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 2 तरीके की फंड्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब मशीनें खरीदनी है आपको। ठीक है, तो फैक्ट्री चलाने के लिए मशीनें लगती है ना, वो खरीदनी है। तो वो खरीदने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं कैपेक्स। थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। ऑपेक्स मतलब बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, लोगों को सैलरी, मतलब जो एक महीने में एक बार रिपीट हो रही है उसे हम ओपेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एस्टिमेट करने के बाद इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। तो अगर हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो मेरे पास एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, उसे हम डीपीआर बोलते हैं। तो वो डीपीआर के बेसिस पे मुझे पता चलता है कि मेरी कंपनी में कितने की मशीन लगेगी, कितने का माल लगेगा, कितने महीने में वो पैसे आएंगे। तो ये साइकिल हो गई, तो उसकी व्यवस्था मुझे करनी है। अब एक तरीका तो ये है कि मेरे को बिजनेस शुरू करना है तो मैं पिताजी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए। अब अगर उसके पिताजी के पास नहीं है पैसे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक? अब आपके पास दूसरा तरीका क्या है कि जिसे मैंने कहा है कि आपको स्मार्ट फंडिंग की बात करनी पड़ेगी। स्मार्ट फंडिंग का तरीका क्या है कि आपको हर कंपोनेंट को, हर चीज को स्टडी करना है, नेगोशिएट करना है। आपका प्रोडक्ट बन गया तो उसे बेच के उसकी जो साइकिल है उसे छोटा करना है। कि लेट से आपको अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट करनी है कि जो प्रोडक्ट मैं आपको 1 लाख रुपए में देता हूँ मैं आपको 90,000 रुपए में दूंगा, लेकिन आप मुझे पैसे एडवांस में देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको 90,000 रुपए आ गए, तो आपका जो प्रॉफिट पहले 30,000 रुपए होना था वो 20,000 रुपए हो गया। 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने उसे, ये वो ना। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ आपको कि आपकी साइकिल चल गई। ठीक, अब आपके पास 90,000 रुपए आ गए तो आपकी अगली साइकिल के लिए आपको 70,000 रुपए जो लगने हैं, जो आपकी कॉस्ट है, वो आपके पास अवेलेबल हो गई। तो आप नवंबर महीने का काम भी कर पाएंगे। बल्कि नवंबर महीने में आप 70,000 रुपए के बजाय 80,000 रुपए की साइकिल चला पाएंगे। तो आपकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि 80,000 रुपए बना के जो माल बेचेंगे आप वो 90,000 रुपए के बजाय उसके लिए आपके पास 1 लाख रुपए आएंगे। मे बी 1,02,000 रुपए आए, 1,05,000 रुपए आए। दिस इज ग्रोथ, दिस इज ग्रोथ। और इसी ग्रोथ की साइकिल को हम लोग कहते हैं कि अगर मैंने अपना रोटेशन चला लिया तो मेरी सक्सेस इंश्योर्ड है। अब इसे आप इंश्योर कैसे करेंगे कि ये कैसे होगा? मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरे को कितना डिस्काउंट देना है? अगर मैं किसी से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे पहले पैसे दे दो, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे उससे कितना डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो MIS के बारे में कितने लोग जानते हैं? मैं एज्यूम करता हूँ कि कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, MIS का मतलब, MIS की जो बुकिश फुल फॉर्म है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि मैनेजमेंट अपने काम चलाने के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाता है, एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिससे कि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, एक स्मार्ट फंडिंग करने के लिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट डाला है। हम इसे MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं बोलते, हम इसे मंथली इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं।
और इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग एक मंथली कैश स्टेटमेंट, ठीक है, मंथली इनकम स्टेटमेंट और मंथली कैश स्टेटमेंट में मैं फर्क बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि अगर इस महीने में जो आप बिजली बेच रहे हैं या यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका बिल आपको, अगर अक्टूबर महीने का बिल है तो वो उसका बिल 25 नवंबर को आएगा और वो पैसे आपको दिसंबर में देने पड़ेंगे। ऐसा होता है ना? तो इसका मतलब ये एक्सपेंस तो अक्टूबर का है, लेकिन इसका कैश जो आएगा वो दिसंबर में आएगा। ठीक, ऐसे ही जब सैलरी जो व्यक्ति अक्टूबर में काम करता है उसको सैलरी हम 5 तारीख को या 6 तारीख को या 2 तारीख को देते हैं, नवंबर में देते हैं ना, तो खर्चा तो ये अक्टूबर का हो गया, लेकिन इसका जो आउटफ्लो है वो नवंबर में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो अगर मुझे पता है कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 70 रुपए है, उस 70 रुपए में भी उसके कंपोनेंट क्या है कि उसमें 40 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, उसके भी अलग अलग चीजें आपके पास नोटेड होनी चाहिए। ये इसकी पैकेजिंग कॉस्ट है, इतना बिजली का खर्चा है, इतना पानी का खर्चा है, इतना कन्वेंस का खर्चा, वो डिटेल आपके पास है। अगर आपने बना रखा है तो इसका मतलब आपका ग्रिप मजबूत है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसके 2 फायदे होंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपके पास डिटेल है तो आप उस डिटेल को विजिट कर सकते हैं कहीं भी। आप जिससे माल खरीद रहे हैं उससे हर 2-3 महीने बाद बोलेंगे कि यार मंदा हो गया है, इसके रेट जरा कम कर दो। दूसरा, हमने अभी बात की थी एक कल्चर इमेज की, तो अगर आपने ऐसी इमेज डेवलप की हुई है अपने वेंडर्स के साथ कि हमारा पैसा टाइम पे आ जाता है, तो फिर आप उससे नेगोशिएट कर पाएंगे। आज जो सामान आप 25 रुपए का खरीद रहे हैं, आपका डीलिंग उसके साथ अच्छी है तो आप उसको वो 24 रुपए में ऑफर करेगा, नहीं करेगा तो आप मांगिए उससे। ये सब पार्टनर्स के काम है जो कि आपको करना है अपनी ग्रोथ एंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो 70 रुपए से घट के 66 रुपए या 67 रुपए या 65 रुपए आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है और आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है। दूसरी साइड आपको अगेन वही अपने कस्टमर के साथ भी इसी प्रकार से निगोशिएट करना है कि जिससे कि आप उसे बेटर सर्विसेज, जैसे आपको क्या करना है, 2 तरीके के निगोशिएशन होते हैं। अगर आप अपने कस्टमर के साथ बैठे हैं तो एक तो आपको उसे मोटिवेट करना है कि जब वो 10 आइटम खरीद रहा है आपसे तो धीरे धीरे वो आपसे 20 खरीदे, क्योंकि आपको ग्रो करना है। और धीरे धीरे आपको उसे ये बताना है कि हमारे प्रोडक्ट में हमने क्वालिटी इंप्रूव की है, जो कि आप कर ही रहे हैं कंटिन्यूअस इनोवेशन के थ्रू। तो हम अभी जो प्रोडक्ट आपको 10 रुपए का दे रहे हैं वो आपको 10 रुपए 50 पैसे का देंगे, क्योंकि हमने आपको एडिशनल सर्विसेज देनी शुरू कर दी है। तो आप कंटिन्यूअस एंगेजमेंट, आप अपनी फंडिंग के साथ, आपकी डिटेल क्योंकि है, आपकी इंफॉर्मेशन स्ट्रांग है, आपको पता है आपके प्रोडक्ट में क्या लग रहा है, आपको पता है आप अपने प्रोडक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर्स के साथ और अपने वेंडर्स के साथ एंगेजमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी परचेज कॉस्ट कम होगी और आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, मतलब आपके मार्जिन बढ़ेंगे। और जितना आपका मार्जिन बढ़ेगा उतना ही आपका सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी संभावना इस बात की बढ़ेगी कि आप तेजी से ग्रो कर पाए। तो दिस इज अ स्मार्ट फंडिंग साइकिल। अब इसमें क्या होता है कि फंडिंग दो तीन प्रकार की होती है। कई बार क्या होता है कि आपकी फंडिंग में कस्टमर आपको पूरे पैसे एडवांस देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पैसे तो चाहिए आपको, तो पैसों की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन दैट सिचुएशन आपके पास फंडिंग सोल्यूशन अवेलेबल है कि आप या तो डेट्स में जाएंगे या इक्विटी में जाएंगे। इक्विटी कहाँ से आएगी इनिशियल लेवल के पास? आपके पास या तो फ्रेंड से आएगी या रिलेटिव से आएगी। अगर वो नहीं आ रही तो आपके पास बहुत सारे सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं जहां से कि आपको लोन मिलेगा। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी किताबें, आपकी बिजनेस अकाउंटिंग ठीक है तो आपको सस्ते दरों पर लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको महंगे दरों पर लोन मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपका नॉलेज और स्किल सेट इंपॉर्टेंट है, या आप सही जगह से गाइडेंस ले पाए, जिससे कि आप एक सही प्रकार का लोन, जिससे कि आपकी कंपनी का वैल्यू एडिशन होगा और आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की साइकिल में स्टकअप नहीं होंगे, तो फिर आपके बिजनेस के सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो फंडिंग के बाद अब क्या आ गया, अब फंडिंग, अब आपकी साइकिल सेट हो गई, आप हर महीने अब आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको स्केल करना है। स्केल कैसे करेंगे? स्केल मतलब ग्रोथ, ठीक है। हम एक चीज आपको बहुत गहराई से ये बता देना चाह रहा हूं कि इस ब्रह्मांड में ना गति इज अनअवॉइडेबल। हम भी कहते हैं ना पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पे और निरंतर घूमती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ इज इनएविटेबल। अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो आपकी डी ग्रोथ अवश्यम भाई है, मतलब आप फिर डी ग्रो करोगे। तो अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप वहां पे खड़े नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो जो आगे बढ़ने की दौड़ में भाग रहा है ना, वो आपको पीछे धकेल के चला जाएगा। तो इसलिए ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, growth is urgent, and growth is, you have to make sure that you are growing, because if you are not growing then you have to degrow, ठीक है। अब एक मिथ है हमारे यहाँ सभी जगह कि मार्केटिंग का मतलब होता है जी पैसे खर्च कर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पैसे खर्च करो। मार्केटिंग का मतलब है खूब सारे पैसे लगाओ, खूब सारे पैसे खर्च करो, टीवी में ऐड चलाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग ये नहीं है। मार्केटिंग का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं, इसको सिंपल शब्दों में समझना बताऊं, तो अपने प्रोडक्ट, अपने कस्टमर और अपना बाजार, इन तीनों को अच्छे से समझना ही मार्केटिंग है। सबसे पहले मार्केटिंग का एक पार्ट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपका प्रोडक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, बेस्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए, उसमें कंटिन्यूअस इनोवेशन होने चाहिए। मतलब अगर आपने एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट को दे दिया, इसका मतलब आपका 50% मार्केटिंग हो गई, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग का एक तरीका वर्ड ऑफ माउथ भी होता है कि अगर आप अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट आपने डिलीवर किया और उससे रिक्वेस्ट की कि सर आप अपने रिव्यू शेयर कीजिए, ठीक है, क्या लगा आपका? कोई कॉस्ट नहीं लगी ना। आपने क्यूआर कोड बना रखा है, गूगल में एक अकाउंट बना रखा है, आपने जो भी कस्टमर आता है वो खुश होता है तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप एक रिव्यू डाल दो, ठीक है, करते हैं ना। सोचिए कि ये रिव्यू बढ़ते 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 इस लेवल के हो जाए कि वो रिव्यू लोगों को इंस्पायर करने लगे। देखते हैं ना जब भी आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो हम सब जनरली रिव्यूज को चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट के रिव्यू कितने हैं। तो इसमें कितने पैसे लगे हमारे? कुछ भी पैसे नहीं लगे। तो हमें क्या करना है कि हम जब भी अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन करें, ठीक है, एंगेज करें उसे। कस्टमर एंगेजमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। भाई आपने उनका डेटाबेस रखा हुआ है, आप अपने कस्टमर्स की लिस्टिंग करते हैं, आप होली दिवाली उन्हें बधाई भेजते हैं, आप कभी छोटे मोटे गिफ्ट दे देते हैं और आपने एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि हर महीने में अगर कोई कस्टमर ऐसा लगता है हमें कि उसने हमारे से अच्छी परचेजिंग की है तो हम एक छोटा सा गिफ्ट उसे दे देते हैं। दिस इज कस्टमर एंगेजमेंट, ठीक है। तो मार्केटिंग का पार्ट है ये कस्टमर एंगेजमेंट। एक और चीज बता देता हूं कि बिजनेस की जो सबसे वैल्यूएबल चीज क्या होती है? बिजनेस की सबसे वैल्यूएबल चीज होती है उसकी इमेज, ठीक है। लेकिन वो उसकी बैलेंस शीट पे नहीं आती क्योंकि उसे हम वैल्यू नहीं कर सकते। वो इमेज बनती है कंटिन्यूअसली अपने कस्टमर्स के साथ एंगेज करने से, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ इनोवेशन करने से और एक वैल्यू सिस्टम पे काम करने के लिए, जिसको कि हमने शुरू में हमने बताया था ना कि हमने अपनी पूरी टीम को अपनी कल्चर, अपनी वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे ऑफिस में कोई आता है मेरा कस्टमर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या क्या है, तो उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। रिसेप्शनिस्ट उसे प्रॉपरली बिठाती है, पानी पिलाती है,
जिस व्यक्ति से वो मिलना चाहता है वो उससे प्रॉपरली आके मिलता है, उसकी समस्या को समझता है और उसकी सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है। तो जब वो जाता है तो ही सेटिस्फाइड। तो every satisfied customer brings back with at least 10 more customers। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू सिस्टम आपने बताया है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको अगेन स्मार्ट मार्केटिंग करनी है, ठीक। मार्केटिंग में कोई अगर आप बड़ा सा प्रोफेशनल लेंगे तो वो क्या करेगा कि आपके सामने एक बजट रखेगा कि हमने ये एड शूट करना है, फिर उसके बाद टीवी पे चलाना है जी, आपको प्रोडक्ट बिक जाएगा। मैंने क्या कहा आपसे कि आपको ये कुछ नहीं करना। अगर आपके पास इतने हैं रिसोर्सेज हैं तो हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक नए स्टार्टअप के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मार्केटिंग इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द बिजनेस। अगर वो आप नहीं करेंगे यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो, और इफ यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो तो मैंने आपको बताया कि यू विल श्योरली डी ग्रो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मार्केटिंग करनी है, और उस मार्केटिंग को करने के लिए हमें ऐसे तरीके निकालने हैं जिससे कि हम लोग लो रिसोर्सेज लगा के एक अच्छी मार्केटिंग कर पाए। तो मैंने क्या बोला कि कस्टमर एंगेजमेंट, उसके लिए एक बेस्ट तरीका है कि अपने कस्टमर को एंगेज करके अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करके हम मार्केटिंग कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अब हम आते हैं अब हमारे सारे कंपोनेंट सेट हो गए, ठीक है, बिजनेस मेरा चल गया। तो अब क्या है, इस साइकिल को मुझे तेजी से घुमाना है। अभी साइकिल होगी ना मेरी, मेरा प्रोडक्ट बन गया, मैंने मार्केट में बेच दिया, सामने से पैसे भी आ गए, पैसे आ गए तो मैंने उसकी मार्केटिंग का अरेंजमेंट भी कर लिया, तो इसका मतलब मेरी साइकिल कंप्लीट हो गई। अब मुझे स्केलिंग करनी है। स्केलिंग करनी है मतलब मुझे अपने ऑपरेशंस का साइज बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि अब मैं अगर स्केल कर रहा हूं तो मेरी साइकिल बढ़ेगी, मतलब मेरा खर्चा भी बढ़ेगा, मैं ज्यादा लोगों को रखूंगा तो सैलरी बढ़ेगी, मेरे रॉ मटेरियल में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी बढ़ेगा, और इन्वेंट्री भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं स्केल करने की कोशिश कर रहा हूं तो टच ऑफ द बटन पे तो सेल ग्रो नहीं हो सकती ना। लेट्स से अगर मेरी अक्टूबर के महीने में 1 लाख यूनिट बिकी, तो वो एक साथ तो 10 लाख नहीं बिकने लगेंगी ना। तो मुझे 2 काम करने हैं, एक तो मुझे नापना है कि मुझे कितना स्केलिंग करनी है, उसको मुझे एस्टिमेशन करना है। उस एस्टिमेशन करने के कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि अगर मैं सोचो प्लान करता हूँ कि मेरे जो एरिया जिसमें मैं ऑपरेट करता हूँ उसमें 1,10,000 यूनिट आराम से खप जाएंगे, बहुत ज्यादा मारामारी उसे करने की जरूरत है नहीं। तो अब मुझे दूसरा ये देखना है कि क्या 1,10,000 1 लाख को 1,10,000 करने के लिए जो एडिशनल पैसे की जरूरत पड़ेगी वो मेरे पास है। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं है तो मुझे उसकी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसका अरेंजमेंट नहीं कर पाऊंगा तो मेरे बिजनेस में ब्लॉकेज आ जाएगी, और वो ब्लॉकेज आ जाएगी तो फिर मेरा पूरा फोकस उस ब्लॉकेज पे चला जाएगा, बिजनेस ऑपरेशन से हटके। आपने कई बार गौर देखा आपके दांत में कभी ना कुछ फांस लग जाती है, कोई तिनका अड़ जाता है, कुछ हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जीव या पूरा इकोसिस्टम आपका ना उसी फांस पे ध्यान देता है आपका, आप कुछ और पे फोकस कर ही नहीं पाते। तो बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। तो अगर आपके कोई हर्डल है, कहीं कोई प्रॉब्लम फंसी हुई है, तो आपका पूरा सिस्टम उसी प्रॉब्लम में फंसा रहेगा, वो ग्रोथ पे और अपने ऑपरेशंस पे फोकस नहीं कर पाएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आएगी, आपको लॉस होगा, या आपका काम खराब होगा, या आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट आएंगे, आपके कस्टमर के एंगेजमेंट में प्रॉब्लम होगी, कोई कस्टमर आपके पास आएगा तो आप उससे ठीक से बात नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम आप लेके चल रहे थे उसमें डिस्टरबेंस आएगा। उससे क्या होगा, आपकी इमेज खराब होगी, जब आपकी इमेज खराब होगी तो आपका कस्टमर एंगेजमेंट खराब होगा, तो इसका मतलब आपके कस्टमर को आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको उस ग्रोथ को प्लान करना है कि मेरे को क्या ग्रो करना है। अगर मेरे को पता चला कि नहीं जी मैं 1,10,000 का अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं अपनी ग्रोथ की स्पीड को कम करूंगा, फिर मैं 5,000 ही ज्यादा बढ़ाऊंगा, और अपने
लॉन्गिविटी करूंगा कि लेट अस पूल रिसोर्सेज फर्स्ट, वंस आई पूल द रिसोर्सेज उसके बाद मैं आगे बात करूंगा कि भाई मैं अब किस लेवल पे जाऊं। तो दिस इज द प्लानिंग ऑफ ग्रोथ, दिस इज द प्लानिंग ऑफ स्केलिंग, दिस इज द प्लानिंग ऑफ एक्चुअली मेकिंग ए आइडिया अप टू द स्टार्टअप। तो ये अगर मैंने एक बार कर लिया तो अब उससे क्या करना है, धीरे धीरे आपको अपने आप को फ्री करना है। सबसे पहले आपने क्या देखा कि यार एक एक काम है, एक पेपर आता है, बंदे को चेक करना है, उस पर ठप्पा लगाना और आगे बढ़ जाना है। तो आपको लगता है तो रूटीन का काम है ना। तो जितने भी स्टैंडर्ड रूटीन या जिनको डिफाइन किया जा सकता है, आप कोशिश कीजिए कि आप उसे डेलीगेट करें। अगर आप उसे डेलीगेट करेंगे तो फिर आप अपने आप को ज्यादा डायनामिक प्रॉब्लम्स के लिए फ्री कर पाएंगे। तो अब जब आप ये सारा कुछ डेलीगेट कर दिया तो आपके पास समय बचा, तो आप दो ही काम करेंगे ना, या तो सोचेंगे कि यार बिजनेस की ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जिसको मैं एक बार सॉल्व करूं तो मुझे कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा, ठीक है, या फिर क्या नया काम करूं मैं, आई कैन थिंक ऑफ ग्रोथ, आई कैन प्लान ऑफ ग्रोथ, आई कैन न्यू स्ट्रीम ऑफ बिजनेस, आई कैन थिंक, मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं फंडिंग की कैसे और अरेंजमेंट करूं जिससे मेरी ग्रोथ फास्टर हो जाए। ये सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए मेरे पास टाइम होना जरूरी है। मुझे चाहिए कि मैं अपने टाइम को की एरियाज के ऊपर इन्वेस्ट करूं जिससे कि मैं अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकूं, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा है कि ग्रोथ अगर विदाउट प्लानिंग करेंगे, मैक्सिमम कंपनियां जो बंद होती है वो ग्रोथ फेज में बंद होती हैं, बिकॉज दे हैव नॉट प्लान्ड देयर ग्रोथ प्रॉपरली। उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी से ज्यादा लेवल का ग्रोथ का स्पीड रखा, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ को फंड नहीं कर पाए और वो बंद हो गए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्केलिंग अगेन यार स्केलिंग स्ट्रेटजी शुड बी स्मार्ट इनफ कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं जिसके बेसिस पे मैं स्केल करूंगा। अब जब आप चल पड़े, ठीक है ना, अब आपका स्टार्टअप ये हो गया कि आपका प्रोडक्ट भी स्टैब्लिश हो गया, बन गया, तो अब आपको थोड़ा बड़ा सोचना है, शुरू करना है, क्योंकि आप स्टार्टअप है ना, क्योंकि ग्रोथ है जरूरी, ये हम पहले से स्टैब्लिश कर चुके हैं। अब आपका प्रोडक्ट भी सेटअप हो गया, आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी भी कामयाब हो गई, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपका समय ये आ गया है कि अब आप प्लान करें कि अब हम बड़े काम कैसे करेंगे। कि जैसे अगर आप शहर में थे तो कोशिश करें कि स्टेट में जाएं, अगर हम स्टेट में थे तो कोशिश करें कि ऑल इंडिया जाएं, और अगर हम ऑल इंडिया थे तो कोशिश करें कि एक्सपोर्ट करें। दिस इज द वैल्यू चेन। ऐसे ही धीरे धीरे कंपनियां बढ़ती हैं। आज जो लाखों करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज होती है, वो 1970 में कुछ लाखों की कंपनी हुआ करती थी। तो उन्होंने समय रहते हर चीज में ग्रो किया, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एनी वन आउट ऑफ यू कैन डू इट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो मैंने आपको एक साइकिल बताया है, इसको लंबे समय तक अगर आप दोहरा पाए तो कंसिस्टेंटली चलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक समय के बाद आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने लगता है। कि लेट से आप हर महीने अगर आप 2% भी बढ़ रहे हैं ना, तो आप 10 साल बाद फिगर की कल्पना नहीं कर पाओगे कि कितना होगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको, काम आएगी, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि कुछ काम हो रहा था, तो उसने कहा कि जी आप मेरे को चावल दे दो। कहता कितने चावल दें? कहता जी चेस का बोर्ड होता है ना, उसमें 64 खाने होते हैं। कहता बस कुछ नहीं करना, आपने पहले खाने में 1 रखना है, अगले में 2, फिर अगले में 4, फिर ऐसे कंपाउंड करते चले जाओ साहब। आप कैलकुलेट करके देख लो 64वें जो दाना खाना आएगा ना, उसमें कितना क्वांटिटी बन जाती है। तो दिस इज द ग्लोरी ऑफ कंपाउंडिंग।
कि अगर आप लंबे समय तक एक समान दिशा में धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो कुछ सालों बाद आपको कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट ग्लोरी देने लगेगा। इसीलिए सेविंग्स के बारे में कहा जाता है ना कि यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। अगर आपको 25 साल में स्टार्ट कर दिया, चाहे 5,000 रुपये महीने ही बचाना शुरू कर दिया, तो उस पे अगर आप 5% से भी रिटर्न ले रहे हो तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आपको 60 साल बाद करोड़ों रुपए लौटा के देगा। तो दिस अप्लाइज ऑन बिजनेस ऑल्सो, कि अगर आप ये 5% ग्रोथ या 2% ग्रोथ महीने की बात कर रहे हैं और आपने इसे कंसिस्टेंटली कर लिया, तो अगर मैं लॉ ऑफ एवरेज के रूल को भी ले लूं तो 10 साल बाद यू विल बी एट ए वेरी गुड पोजीशन। और इसमें करना क्या है कि आपको कंटिन्यूअस एंगेजमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स है, आपकी टीम के लिए भी, आपके कस्टमर्स के लिए भी, अपने वेंडर्स के लिए भी, और योर प्रोडक्ट। तो अभी क्या हो गया, आपका फीडबैक का मैकेनिज्म आप बना चुके हो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उस फीडबैक से आप अपनी कंपनी में एक मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम, मंथली इनकम स्टेटमेंट, मंथली कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना चुके हो। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, आपके पास सारे फीडबैक हैं, आप अपने वेंडर्स को एंगेज करके चल रहे हो, आप अपने कस्टमर्स को एंगेज करके चल रहे हो, आप अपनी टीम को एंगेज करके चल रहे हो, और आप अपने मार्केट की स्टडी करके चल रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट में नया इनोवेशन करके चल रहे हो, तो आपको पता है कि आपका मार्केट किस तरीके से बढ़ रहा है, तो आप उसकी ग्रोथ प्लान कर सकते हो। दिस इज वी कॉल्ड अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्यों? क्योंकि ये आप कर रहे हो किसके? बेस्ड ऑन योर फीडबैक सिस्टम, बेस्ड ऑन योर स्टडी ऑफ योर सिस्टम, बेस्ड ऑन योर मंथली इनकम स्टेटमेंट, बेस्ड ऑन योर मंथली कैश फ्लो साइकिल स्टेटमेंट। तो इन सारे डिसीजंस के सक्सेसफुल होने की संभावना बाकी सारे डिसीजन से सक्सेसफुल होने की संभावना से ज्यादा होगी। ठीक है? तो अब आप ग्रोथ पाथ पे भी चल दिए साहब, तो अब रह क्या गया? कुछ नहीं। अगर आपकी ग्रोथ पाथ हो गया, फिर तो आपको बस एक चीज करनी है कि आपको एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना है, जिससे कि क्या होता है कि जब आप स्केल करते हो, आपकी टीम बड़ी होती है, नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो उसमें से कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब होने की भी संभावना हो सकती है। तो वो खराब लोग आपके सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाएं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनको अपने सिस्टम से दूर करना है, इसका आपको मॉनिटरिंग सिस्टम एक बनाना पड़ेगा। बिकॉज यू हैव टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ ना। सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे आएगी? सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे आएगी कि आप इस काम को बिना किसी अटकन के या बिना किसी डिस्टरबेंस के अगर आप करते चले गए तो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी। इससे क्या होगा? क्योंकि हम एक कल्चर की बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक वैल्यू सिस्टम के ऊपर काम करता है। हम ये अपनी कंपनी का कल्चर अपने एम्प्लॉयज के अंदर एम्बाइब कर चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग में, उनके मोटिवेशन में, उनके एसओपीज में हम वो कल्चर एम्बाइब कर चुके हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट मिलेगा आपको? आपकी कंपनी की इमेज बढ़ेगी। कंपनी की इमेज अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके कस्टमर आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, आपके वेंडर आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, और अगर आपके कस्टमर, आपके वेंडर आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे तो आपको एक बेटर क्रेडिट पीरियड मिलेगा मार्केट से, और अर्ली पेमेंट आपको अपनी सेल्स के अगेंस्ट मिलेगा, जिससे कि आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल ईज अप होगी। ठीक है? बेस्ट ऑफ द कंपनीज आर दोज हु मैनेज देयर इंटेंजिबल्स प्रॉपर्ली। इंटेंजिबल्स का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है दैट इज और गुडविल। गुडविल मतलब आपके प्रोडक्ट के साथ आपने एक इमेज बिल्ड कर रखी है, क्योंकि आपके कस्टमर को ये ट्रस्ट है कि आप अपने प्रोडक्ट पे कंटिन्यूअसली इनोवेट करते हैं, आप उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देने की कोशिश करते हैं। ऐसी इमेज आपने एक पैदा की है अपने कस्टमरों के माइंड में। तो अब आपका मेजर रोल ये हो गया कि आपको मॉनिटरिंग करनी है अपने ऑपरेशंस की, और ये जो इमेज आपकी है इसको ये इंटैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अभी जब शुरू के 10 सालों में तो आपके बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं कि आपको ये ध्यान करना है, जो आपने बनाया, एक एक ईंट जोड़ के अपने आपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, लेकिन 10 साल बाद जब आप स्केल करके एक लेवल पे पहुंच गए तो आपको
किन चीजों की चिंता है कि जो आप वैल्यू चेन क्रिएट करके आए हैं अभी तक, जो आप वैल्यूज करके आए हैं, तो उन्हें आपको मेंटेन करना है और अपने कस्टमरों का वो जो ट्रस्ट है वो रिटेन करके चलना है कि नहीं, इस कंपनी के प्रोडक्ट के में हमारे बारे में ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये करने के बाद आपका एक सस्टेनेबल ग्रोथ और कंटिन्यूअस ग्रोथ का ऑपरेशन आपका चलता रहेगा। ठीक है जी, अब क्या बचा? कुछ नहीं। अब तो आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, ग्रो कर चुके हैं, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना चुके हैं, जिसको हम कहते हैं ना आइडिया से आईपीओ तक। तो अब आपकी ये सिचुएशन आ गई है कि अब आपके पास प्रोडक्ट है, मार्केट है, कस्टमर है, टर्नओवर है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट है, आपका रेगुलर ट्रैक रिकॉर्ड है, टैक्सेशन पे कर रहे हो, तो फिर क्या है, फिर आईपीओ लेके आओ, अपनी कैपिटल बाहर निकालो और ऑटोमेशन में काम करो, बिकॉज नाउ यू स्केल टू ए बिगर ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज द मेन एम ऑफ अ स्टार्टअप। अब आप बन जाओ खुद के लिए एक इन्वेस्टर बन जाओ। आपका नाम भी अब अमन गुप्ता या बड़े जो नंदन नीलकर्णी, नारायण मूर्ति, इनके लोगों के साथ में लेके जाने लगेगा। और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, डिटेलिंग, हार्डवर्क मांगता है एंड एनी वन ऑफ यू कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग. Any questions or any other thing which is required, Sunil ji can guide me. If anything else to be covered, please let me know. I'm okay. सर थैंक यू सर। मुझे तो लगा कि ये सेशन बहुत बड़ा जाने वाला है, लेकिन आपने इतने समराइज वे में इसको पूरे डिटेल में समराइज वे में आपने कवर किया और सारे टॉपिक्स मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप आपने एक्सप्लेन किया और सबने कुछ ना कुछ टेक अवे और की नोट्स अपने बनाए होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऑलरेडी जो मैं रिक्वेस्ट करने वाला था, मुझे लगता है कि ऑलरेडी सबके रिएक्शंस आने लगे हैं और किसको कैसा फीडबैक रहा, किसको कैसा पसंद आया, वो अपने हिसाब से इसको फीडबैक दे रहे हैं। और किसी को चैट बॉक्स में भी कुछ लिखना हो तो प्लीज कर सकते हैं, इससे स्पीकर का भी मोटिवेशन बढ़ता है और वो भी इंस्पायर होता है फॉर नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू। सुनील जी, मैं समझता हूँ कि हमारा ये सेशन जैसे हमने डिसाइड किया था, हालांकि हम तो अपने चीज़ों को अच्छा बोलेंगे भी, और हमने जो डिसाइड किया था, जिस तरह से डिसाइड किया था, सिर्फ एक आशीष सर किसी कॉज कारण नहीं आ पाए हैं, बिकॉज काफ़ी वो नीति आयोग में है तो बड़े सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम लोग लेके आएंगे। आज भी वो उन्होंने बोला था कि जब भी टाइम मिलेगा मैं बीच में आ जाऊंगा, बट हो सकता है कहीं मीटिंग्स उनकी होगी। तो यहाँ पे जो हमने जो डिसाइड किया था, जिस तरह से डिसाइड किया था, एग्जैक्टली हमने उसी को फॉलो किया। और खास करके मैं तो ये बोलूँगा कि मैंने तो गुप्ता सर से बोला था कि आइडिया वैलिडेट में करूँगा, आप आइडिया टू एग्जीक्यूशन करिए, बट गुप्ता सर ने आइडिया टू आईपीओ वैलिडेशन के बाद आईपीओ तक पहुँचा दिया है हमारे स्टार्टअप को। मुझे ये आप लोग से कहना है कि मेरे ना हम जब कैंपेन करते हैं तो बड़े सारे लोग इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, किसी न किसी कारण से लोग नहीं आ पाते हैं और चीज़ें हो जाती है इस तरह से। अगर देखिए ये सेशन हम अपना टाइम जो दे रहे हैं या आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं, तो ये फ्रूटफुल सेशन होता है, बिकॉज हमारा आइडिया यही है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें और आप अपने को एक अलग लेवल पे ले जाएं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अपना देश जिस जगह खड़ा है अभी, ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। आने वाला ये 10 साल 15 साल जो है ना, ये पूरी की पूरी एमएसएमई और पूरे बिजनेस सेक्टर का है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पूरी तरह से जो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग बार पहले ही बोला था, कुछ लोग आए थे, थ्रू एमएसएमई एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हमने किया है जो आपके साथ खड़ा है, आपके हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाने के लिए, पार कराने के लिए खड़ा है। बिजनेस की कोई भी चीज है, चाहे वो आइडिया क्या आया, वो आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करें, उसको वैलिडेट कैसे करें, इतने सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस जो सर ने बताया, उन सब फैक्टर्स पे मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। हमने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमने एक न्यूज लेटर जस्ट 2 दिन पहले 9 तारीख को लॉन्च किया है, जिसमें हमने वास्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोलैबोरेट किया था। इस तरह हमने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं
कि हम अपने छोटे से छोटे जो बिजनेसमैन हैं और बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन है उसको हम हर लेवल पे सबको हम हेल्प कर सकें। तो मेरा आइडिया ये जो हमने न्यूज़लेटर हमारा है वो न्यूज़लेटर हर महीने आपके पास पहुंचने की कोशिश करेगा, पहुंचेगा अलग अलग थीम्स को लेके, बिजनेस की अलग अलग ऑब्स्टिकल्स और उसके सॉल्यूशंस को लेकर के। तो आप बेझिझक इसमें जो हमने ईमेल आईडी दिया हुआ है ईमेल आईडी पे रेज करिए, आप जो कुछ लिखना है वो लिखिए। हमारे एक्सपर्ट जो सुनील जी बैठे हैं या गुप्ता सर ने बोला या मैं हूँ, मेरी टीम है पूरी, आपको उसको उसका जवाब भेजेगी, आपके बिजनेस में भागीदार बनेगी, आपको कंट्रीब्यूट करेगा आपको आगे बढ़ाने में। तो भूलिए मत और अपने साथ लोगों को और लाइए। अगर आपको लगता है कि सेशन बहुत अच्छा हो रहा है, जो मेरा मतलब ये है कि मैंने कल परसों एक अपने स्पीच में कहा था कि कंपटीशन ओवर सॉरी कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, यानी कंपटीशन तो हम लाइफ में करते ही हैं, हर जगह होता रहता है, बट हम कोलैबोरेट जब तक नहीं करेंगे ना तब तक हम बड़ा नहीं हो पाएंगे। तो मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि और लोगों को जोड़िए, अपने फीडबैक को डालिए, और हम जब इसका पीसेस करके आपके पास भेजेंगे इस पूरे वीडियोस को भी हो सकता है कुछ इसका हाईलाइट भेजें, अपने लोगों तक उसको फैलाइए ताकि लोग आए और तो हमें भी लगा कि हम जो काम कर रहे हैं हमें वो काम पे हम सफल हो रहे हैं, हम हमारी भी सफलता उसी में। आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, थैंक्स वोट ऑफ थैंक्स करके आगे बढ़ते हैं। Thank you, sir. Thank you. Now time to say vote thanks. As we conclude, heartfelt gratitude to our guests of honors for their valuable insights. And thanks to our eminent speakers, Mr. Ashok Jha and CA H.K. Gupta ji, for their deep practical perspective on the validation, funding, and execution. And everyone hope you enjoyed a lot. Special appreciation to all participants from and AIC, JNU, and AI Niti Aayog for supporting this initiative. Remember, every big company once started with a small idea. Don't just dream. Start your journey today. Thanks to all. Thanks once again.